السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتنا پیار اور حسین موسم ہوتا ہے، اور سنو، ایسے موسم میں بہانے نہیں کرنے چاہیے، شوہر کو خود سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اون شرارت سے کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ اب میں جلدی گھر آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میرا مطلب ہے میں تمہارے ڈر کی وجہ سے اپنا سارا کام کر چھوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا تو تمہیں بھی میرے پاس آنا پڑے گا۔ وہ ابھی بھی باز نہ آیا۔ اون جی، میری جان بھی صدقے، تھوڑا سا کام ہے، نپٹا کے آتا ہوں۔ سنو، میرے آنے سے پہلے میرا ایک کام کر دینا، اون فون رکھنے سے پہلے کہا۔ اون جی بولے نا، آرزو نے تابع دار بیوی کی طرح کہا۔ میرے آنے سے پہلے ریڈ ڈریس پہن لینا، اون نے کہا تو آرزو شرما دی، اور وہ جانتی تھی اون کا ارادہ اسے شرمانے پر ہی مجبور کرنا ہے۔ اتنا ٹائم ہو گیا، اون جی ابھی تک نہیں آئے، اب تو اندھیرا ہونے والا ہے۔ پھپھو نے کہا تھا آنے میں دیر ہو جائے گی، لیکن اون جی تو آنے والے تھے۔ اس نے کھانے میں ساری ڈش اون کی پسند کی بنائی تھی، لیکن اون تھا جو آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یا اللہ، بارش بھی شروع ہوگی، پلیز بجلی مت کڑکائیے گا، وہ دعائیں مانگتی اپنے کمرے میں جانے لگی جب آسمان سے ایک بجلی کی کڑک کے ساتھ اس کی چیخ نکلی۔ جلدی سے بھاگتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ گئی۔ اب تو بجلی بھی کڑکنے لگی تھی۔ اون جی کہاں رہ گئی ہیں؟ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اون کو فون کرنے لگی۔ بیل مسلسل جا رہی تھی، اون فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اون جی پلیز فون اٹھائیں۔ بہت کوشش کے بعد بھی فون نہ لگا، اور ایک بار پھر سے بجلی کڑکنے لگی۔ اس بار بجلی کڑکنے کے ساتھ لائٹ بھی چلے گئی۔ اب تو آرزو کو رونا آنے لگا۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پیر بھی کانپنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے بجلی کی کڑک اس کے کمرے کی کھڑکی تک آ پہنچی ہے۔ اسے لگا اب بھی بجلی کڑکے گی اور اگلی بار اسے آگ لگ جائے گی۔ وہ بچپن سے ہی بجلی سے بہت ڈرتی تھی، اور تائی امی اسے اور ڈراتی تھی۔ گھر میں تو وہ ہمیشہ تائی ابو کے پاس رہتی ہے ایسے موسم میں، اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر یہ سمجھاتے کہ بجلی سے کچھ نہیں ہوگا، اور پھر تائی امی سے ڈرتے ہوئے دیکھ کر ایسے واقعات سناتی جس میں بجلی گرنے کی وجہ سے لوگ مر گئے۔ اب ان میں کتنی سچائی ہوتی یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ ڈر بچپن سے اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ بارش کے ساتھ اس کے رونے میں بھی شدت آنے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ گئی جہاں بالکل اندھیرا تھا۔ بجلی کڑکنے سے وہاں پر روشنی نہیں پہنچی تھی، لیکن آواز کی وجہ سے ابھی بھی رونا آ رہا تھا۔ اون جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک میٹنگ کی وجہ سے اسے رکنا پڑا اور فون بھی سائلنٹ پر لگانا پڑا۔ اب میٹنگ ختم ہوئی تو وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ رات کے 8:30 بج چکے تھے۔ اس نے آرزو کا نمبر ملایا، لیکن بار بار فون کرنے پر بھی نمبر نہ لگا۔ پتہ نہیں آرزو فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی، سوچتے ہوئے اس نے گھر کی راہ لی۔ اسے آرزو کی ڈر والی بات یاد آئی تو وہ زبیدہ کو فون کرنے لگا۔ ہاں اون بیٹا، اپنے فون پر اون کا فون آتا دیکھ زبیدہ کو بہت خوشی۔ اب گھر پر ہیں یا ابھی بھی شادی والے گھر پہ ہیں؟ اس نے جلدی سے اپنا سوال پوچھا۔ بیٹا بارش بہت تیز ہو گئی ہے، میں نے سوچا بارش ذرا کم ہو جائے تو پھر نکلتے ہیں۔ زبیدہ بھی بول رہی تھی۔ اون نے فون بند کر دیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی جلدی سے نہ آ سکا۔ اس نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا اور آرزو کے نمبر پر سینڈ کیا۔ اسے لگا شاید آرزو اس سے ناراض ہو گیا، لیکن ابھی بھی کوئی رپلائی نہ آیا تو اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ کافی دیر سے بیل بجا رہا تھا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اسے لگا شاید بجلی نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ صورت میں ان کے گھر کی بیل نہیں بجتی تھی۔ بجلی نہیں ہے، یو پی ایس کس بے وقوف نے آف کیا؟ اس نے سوچتے ہوئے آرزو کا نمبر ملایا جو بج کر بند ہو گیا، اور کوئی جواب نہ ملا۔ بارش اپنی شدت پکڑے ہوئے تھی۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بے سود، اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اسے اب آرزو کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس گھر میں 2 نوکرانیاں کام کرتی تھیں، لیکن وہ بھی 6 بجے اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلی جاتی۔ اب ان کے پاس دیوار پہ لنگھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے دیوار پہ لنگھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن آرزو یہاں بھی نہیں تھی۔ وہ پورے گھر میں اسے تلاش کرنے لگا۔ جب وہ سیڑھیوں کے نیچے خود میں سمٹی، اپنے کانوں میں زور سے ہاتھ رکھے رو رہی تھی، اون جلدی سے اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی وہ بلک بلک کر
रोने लगी। आई एम सॉरी आरज़ू, मैं जल्दी आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका, प्लीज़ रोना बंद करो। वो इससे अपने साथ लगाए चुप करवाने लगा। बहुत बुरे हैं आप, मैं कभी बात नहीं करूँगी आपसे, नहीं चाहते मुझे आपके साथ, बहुत गंदे हैं आप। वो मुसलसल अपने नाजुक हाथों से इसके सीने पर मुक्के मारते हुए इसके साथ चिपकी हुई थी। डर की वजह से इसका रोम रोम काँप रहा था। ओन को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। बस मेरी जान, आइंदा ये गलती नहीं होगी, प्लीज़ तुम रोना बंद करो। वो इसे अपने साथ बेजेब मुसलसल चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो इसे ऐसे ही रोते हुए उठाकर अपने कमरे में ले आया। आई प्रॉमिस आइंदा कभी भी ये गलती नहीं होगी। इस मौसम में तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे सच में नहीं पता था तुम इतना डरती हो। शाबाश, अब चुप हो जाओ। ओन के सारे कपड़े भीगे हुए थे जिसकी वजह से आरज़ू भी तकरीबन भीग ही चुकी थी। वो इसे बेडरूम में लाया और आहिस्ता से इसे बेड पर बिठाकर उठने लगा। ओन जी प्लीज़ मत जाइए मुझे छोड़ के, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इसके साथ मज़ीद लगते इसे मजबूती से पकड़े हुए बोली। ओन ने इसके करीब उसे उठने का इरादा कैंसिल करते हुए इसे अपनी बाहों में ले लिया। कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, कभी बात नहीं करूँगी आपसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, इसके साथ लगी हुई बोल रही थी। इसकी बात पर ओन बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। हाँ बारिश के बाद है ना, ओन धीरे से बोला था। तो इसने इसरार में गर्दन हिलाई। यानी बारिश के इस मौसम में वो इससे दूर जाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। यानी अभी राज़ी हो तो मुझसे? ओन ने आहिस्ता से पूछा। लेकिन बारिश ख़त्म होने के बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगी, वो इसके साथ चिपके हुए बोल रही थी जब ओन ने अपने लब इसके होंठों पर रख दिए। अभी राज़ी हो तो इस मौके का फ़ायदा उठाने दो, वो कहता हुआ इस पर झुका था। इसकी ड्रेस देखकर वो पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था कि वो इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इस बारिश ने इन्हें मज़ीद एक दूसरे के करीब कर दिया। ओन धीरे धीरे इसकी ज़ात पर इस कदर छा गया कि बारिश की शिद्दत और बिजली की कड़क इसे भूलने लगी। मेन डोर की बेल बजी। यकीनन घर वाले वापस आ गए होंगे। आरज़ू ने थोड़ी देर पहले इनकी बाहों में बेखबर सो चुकी थी। वो उठा ताकि जाकर दरवाज़ा खोल सके। इसने आकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पर अपने माँ बाप और ताई को खड़ा देख, जो बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग तो बारिश के रुकने पर आने वाले थे, वो आगे आगे चलते हुए बोला, जबकि बाबा पीछे दरवाज़ा बंद कर रहे थे और ज़ुबैदा और आसिया इसके साथ अंदर आ गईं। हाँ बेटा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए आगे। आरज़ू कहाँ है? ताई ने जवाब देते हुए पूछा। जब इसे अकेले घर छोड़ के गई थी तब नहीं हुई थी ये परवाह इसकी, अब क्यों है? वो आगे चलते हुए बोला था। अगर आज वो टाइम पे घर नहीं आता तो ना जाने आरज़ू कितनी देर डरती रहती। रात के 10:30 बज रहे थे। बेटा हमने इससे पूछा था लेकिन वो कह रही थी कि तुम्हारी इजाज़त नहीं है। ज़ुबैदा बेगम ने सफाई पेश की। बस रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सफाइयाँ देने की, और ना ही अब आरज़ू को यहाँ रहने दूंगा। लेके जा रहा हूँ कुछ दिन में यहाँ से, हम अलग घर में रहेंगे। लेके चला जाऊँगा मैं आरज़ू को यहाँ से, वो गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे में जा चुका था। जबकि ज़ुबैदा बेगम को ऐसा लगा जैसे इनका बेटा आज ही इनसे दूर चला गया है। वो कमरे में आया तो आरज़ू को जागते हुए पाया। अरे तुम तो सो रही थी, जाग कैसे गई? वो वापस इसके करीब बैठते हुए बोला। आप जब उठ के गए थे तब मेरी आंख खुली। वो भी उठकर बैठने लगी तो ओन ने इसके कंधे पर हाथ रखकर वापस लटाया और ख़ुद भी इसके साथ ही लेट गया। कल हम अपना घर देखने जाएंगे, इसने आरज़ू का हाथ अपने सीने पर रखते हुए बताया। बस थोड़ी सी सेटिंग रह गई, फिर शिफ्ट हो जाएंगी। ओन जी आपसे एक बात पूछूं? आरज़ू ने कहा तो इसके के ओन और इसके ओन जी कहने पर हमेशा से ही मुस्कुराया। पूछें, वो शरारती अंदाज में बोला। आप ऊपर से बात क्यों नहीं करते? वो इसके सीने पर हाथ रखकर पूछने लगी। इसने एक नज़र आरज़ू को देखा, फिर आंखें बंद करके आहिस्ता से बताने लगा। वो औरत मुझे जन्म नहीं देना चाहती थी, वो मुझे इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, वो मुझे मार देना चाहती थी। इस काम में मेरा बाप भी शामिल था। नफ़रत है मुझे इन दोनों से, इनकी सारी औलादों से भी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने इन लोगों को भी बता दिया कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। हम अपना घर बनाएंगे, हमारी अपनी खुशियाँ होंगी जिन पर तुम्हारा और मेरा हक होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार करूँगा। मैं अपने बच्चों से इस दुनिया में आने का हक नहीं छीनूंगा। तुम जानती हो आरज़ू, ऊंचा ही औलाद का दुख होता है। आरज़ू
اس کے قاتل اور کوئی نہیں بلکہ اس کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح سے میرے ماں باپ تھے۔ میں نے اپنی ساری زندگی یہ تکلیف محسوس کی ہے، یہ دکھ سہے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ آرزو اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے پائی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تو ٹھیک تو ہے؟ زبیدہ صبح سے اس کی پریشان سی شکل دیکھ رہی تھی۔ اب نہ رہا گیا تو پوچھنے لگی، پھپھو آپ سے ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ معصومیت سے بولی، ہاں میری جان پوچھ۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی بات کا برا مانتی ہیں؟ زبیدہ پیار سے اس کا گال چوم کر بولی، آپ اون جی کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھیں، میرا مطلب ہے وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ زبیدہ بول پڑی۔ کون سی ماں ہوگی جو اپنی اولاد کو دنیا میں نہیں لانا چاہے گی؟ میں بہت مجبور تھی آرزو، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، اون کا کیس بہت رسکی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یا میری جان بچے گی یا اون کی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اون کو بچاؤں، لیکن گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میں اون کو جنم دیتی ہوں تو میری جان نہیں بچ سکے گی۔ اون کے بابا کو مجھ میں یا اون میں سے کسی ایک کو چننے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس وقت اون کے ساتھ میرے 4 اور بچوں کو میری ضرورت تھی۔ ماں تو اپنے ہر بچے سے پیار کرتی ہے، میں اون سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اون کی جان لوں، لیکن پھر بھی ان 4 بچوں کو ماں کا پیار کون دیتا، اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور میں نے اون کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ بہت ضدی تھا اور دنیا میں آ کر ہی رہا۔ زبیدہ نے مسکرا کر بتایا، لیکن مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے گا، میری آواز تک نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتا ہے اسے باپ سے کوئی گلہ نہیں، اسے مجھ سے گلہ ہے کہ میں ماں ہو کے اسے کیسے مارنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن میں مجبور تھی آرزو، میں صرف اون کی ماں نہیں تھی، 4 اور بچوں کی ماں تھی جنہیں میں نے اون سے پہلے جنم دیا تھا، لیکن اون بھی دنیا میں آیا، اس کا رزق اس دنیا میں لکھا تھا، اس لیے اسے زندگی دینی تھی، اور پھر میری پیاری سی بھتیجی کو اس کی دلہن بنا کے لانا تھا۔ وہ خوشی سے اس کے گال چوم کر بولی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پوچھنے سے پھپھو اداس ہو گئی ہیں۔ پھپھو میں کھیر اون جی کو دے کے آؤں؟ اس نے کھیر کے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر نہیں کھائے گا، زبیدہ اداسی سے مسکرائی۔ میں کھلاؤں گی، آپ دیں تو صحیح۔ وہ مسکرا کر پیالہ اٹھا کر باہر لے گئی۔ اللہ میرے بچوں کو ایسے ہی خوش رکھنا۔ وہ دعا مانگتی کھیر اٹھا کر باہر چلی آئی، جہاں اس کے سارے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے سوائے اون کے۔ وہ کھیر لے کر کمرے میں آ گئی، جہاں وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا، بولا بھی تھا جلدی آنا، مجال ہے جو میری کوئی بات مان لو۔ اسے دیکھتے ہی وہ منہ بنا کر بولا، وہ میں آپ کے لیے یہ لینے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کھیر کا پیالہ سامنے کیا اور ساتھ ہی 1 چمچ بھر کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کس نے بنایا ہے یہ؟ اون نے کھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ساتھ ہی پیالہ لے کر سائڈ پہ رکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، اور کھائنا میں نے بنایا ہے۔ اسے لگا شاید جھوٹ بول کر ہی اون کو کھیر کھانے پر مجبور کر کے پھپھو کو خوش کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اون اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اس سے زیادہ ٹیسٹی اور کچھ نہیں، وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے آرزو، آئندہ جھوٹ مت بولنا، اون نے سیریس انداز میں کہا۔ پھپھو نے اتنے دل سے بنائی تھی، ہم سوری۔ چوری پکڑے جانے پر وہ فوراً ہی سچ بول بیٹھی۔ میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں میری جان، لیکن ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اون اب بھی اسی انداز میں بول رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ آرزو نے پوچھا تو وہ مسکرایا، بالکل بھی نہیں، تم میری ہو آرزو، ان لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو۔ اون جی، آرزو نے کچھ کہنا چاہا، اب تو مجھے ڈسٹرب کرو گی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، دھمکی دیتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے تمام راہیں فرار بند کر دیں۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور ہر لمحے کے ساتھ آرزو کا اون کی محبت پر یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ صبح آرزو کی آنکھ کھلی، اون آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اتنی لیٹ ہو گئی، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر جانے لگی، جب اچانک اون نے اسے پکڑ لیا۔ ناشتہ بھی کر لیں گے، پہلے نئے سال کی مبارک دے دو۔ وہ ایک ہی پل میں اس سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اون جی، مبارک منہ سے دی جاتی ہے، وہ برا منا کر پیچھے ہوئی اور منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو میں نے بھی منہ سے ہی دی ہے، اون شرارتی انداز میں کہتا شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو صبح صبح، آرزو نے باہر کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں جان من، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آج رات میں نئے سال کا تحفہ دل کھول کے وصول کروں گا، مسکراتے ہوئے اپنے بال بناتے ہوئے بولا۔ آرزو شرماتے ہوئے نیچے آئی، جہاں تامیہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔
मुस्कुराते हुए अपने बाल बनाते बोला। आरज़ू शर्माते हुए नीचे आई, जहां तामिया को रोते हुए देखकर परेशान हो गई। मेरा यकीन करें पुप्पो, ओन के पहले मेरे साथ ताल्लुकात थे, फिर आरज़ू के साथ शादी करके मुझे धोखा दिया। वो कहता था कि वो उसे तलाक देकर मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। तामिया रोते हुए बोली, जबकि इसके एक एक लफ्ज़ पर आरज़ू के कदम सुस्त पड़ते जा रहे थे। ओन इसके पीछे नीचे आ गया था जब इसे रास्ते में खड़ा देखकर करीब आया, लेकिन सामने तामिया को देखकर परेशान हो गया। वो इसकी माँ के पास बैठी ना जाने क्या क्या बकवास कर रही थी। तामिया की बातें सुनकर इसे भी अच्छा खासा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो किसी को अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहता था सिवाय आरज़ू के। और किसी से कोई मतलब ना था। वो आरज़ू को बताना चाहता था कि वो गलत नहीं है। वो इसके करीब आया और इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। आरज़ू, ये लड़की जो भी कह रही है सब बकवास है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। ना इसके साथ मेरा कोई रिश्ता कल था और ना ही आज है। ओन ने इसकी आंखों से आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा। आरज़ू ने एक तरफ ओन की तरफ देखा और बाहर चली गई। ये देखे पुप्पो पूछे, इससे ये सब कुछ जानती है? ये मेरे और ओन के बारे में एक एक बात से वाकिफ़ है। पूछे, इससे क्या नहीं जानती मेरे और ओन के बारे में? क्या इसे पता नहीं है कि ओन इसे तलाक देकर मुझसे शादी करने वाला था? तामिया आंसू बहाती उठकर खड़ी होगी। आरज़ू, क्या ये सच कह रही है? क्या तामिया वो लड़की है? ज़ुबैदा इसकी तरफ देखकर पूछने लगी। क्या तुम ये सब कुछ जानती थी? आरज़ू कुछ भी ना बोली, बस आगे बढ़कर तामिया का हाथ थामा। तामिया को लगा कि इसका प्लान कामयाब हो रहा है और इसके साथ चल दी और इसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगी। वो तामिया को अपने साथ मेन गेट की तरफ लाई और दरवाज़ा खोलकर तामिया को बाहर की तरफ धक्का दिया। तामिया बेयकीनी से इसे देख रही थी। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ तामिया आपी, खबरदार अगर आज के बाद आपने मेरे शौहर या मेरे घर पर बुरी नज़र डाली। अगर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वो करें। इस बार हाथ पकड़ के निकाला है, अगली बार धक्के मार के निकालूंगी। आज के बाद मेरे घर की तरफ आँख उठाकर मत देखना। वो गुस्से से कहती इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जबकि अनीसा और ज़ुबैदा हैरान और परेशानी से देख रही थी, जबकि उनके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खिली थी। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। ये क्या किया है तुमने आरज़ू? ये क्या तरीका है मेहमान से बात करने का? बहुत गलत हरकत है तुमने की है तुमने, अनीसा ने गुस्से से कहा, जबकि आरज़ू ज़ुबैदा के सामने आकर रुकी। इसी तरह से अपने शौहर की ज़िंदगी से दूसरी औरत को निकालते हैं ना पुप्पो? मैंने कुछ गलत किया? वो ज़ुबैदा के सामने खड़ी से पूछ रही थी। जब ज़ुबैदा ने नाम में गर्दन हिलाई, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अपने शौहर की ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत को दो औरत के लिए कभी जगह मत बनने देना आरज़ू। ज़ुबैदा ने एक नज़र अनीसा को देखा और अंदर चली गई, जबकि आरज़ू को बहुत बुरा लगा था। वो कभी तामिया के साथ इस तरह का सलूक करने के बारे में सोच भी ना सकती थी, लेकिन वो अपने शौहर की ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत का वजूद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी जब इसका सर बुरी तरह से चकराने लगा। वो वहीं दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी होगी जब अनीसा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक तो हो? जी तायम्मी, मैं ठीक हूँ। वो मुश्किल मुस्कुराई और नाश्ता बनाने लगी। इन दोनों में सब कुछ ठीक है। 2 महीने हो चुके थे और अब तक उनने इसे तामिया के बारे में कुछ भी ना बताया था। उसे लग रहा था सब कुछ ठीक हो चुका है और अब इसे तामिया के बारे में इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। तामिया इनकी ज़िंदगी में बर्बादी लाना चाहती थी। शायद वो उनसे उस दिन की बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन जो भी था वो आरज़ू को खोने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए इसने आज ही आरज़ू से बात करने का फ़ैसला किया था। इसने आरज़ू से सच्चाई छुपाकर गलती की। इसे आरज़ू की मुकम्मल बात बता देनी चाहिए थी। आज वो काम से वापस आने के बाद आरज़ू को अपने साथ अपना नया घर दिखाने जा रहा था। इसने वक्त से पहले फ़ैसला किया था कि वो तामिया के बारे में भी आरज़ू को हर एक बात बता देगा। आज जिस तरह से आरज़ू ने तामिया को घर से निकाला था, इसने ये साबित कर दिया था कि वो उनसे बहुत मोहब्बत करती है, इसे खोना नहीं चाहती। इन दोनों को एक दूसरे के इजहार की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ओन ने बहुत बार अपनी मोहब्बत का इजहार इसके सामने कर चुका था। ओन ने इसे तैयार रहने के लिए कहा था। शाम 4 बजे वो इसे अपने साथ घर दिखाने ले जा रहा था। अब शाम के 4 बजे बिल्कुल तैयार होकर इसका इंतज़ार कर रही थी जब ओन आया। जब से ओन के जाने की खबर सुनी थी, ज़ुबैदा बहुत उदास रहने लगी थी। इसकी उदासी आरज़ू से भी छुपी नहीं थी, लेकिन वो क्या करती, ओन को अगर मना करे तो वो इसे भी डांटने लगता। बस कहता कि तुम्हें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूँगा। इसने बाहर से ही आरज़ू को बुलाया था। आरज़ू बाहर जाने लगी तो ज़ुबैदा ने शिकायती नज़रों से देखा। आरज़ू इनसे नज़रें चुरा के बाहर चली गई। क्या हुआ मेरी जान, का मूड क्यों ऑफ है? वो इसे उदास देखकर पूछने लगा। ओन जी, हमारा घर छोड़ना ज़रूरी तो नहीं है। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज़ आप ये घर ना छोड़ें।
बस आरज़ू बहुत हो गया, मैं तुम्हें पहले भी समझा और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो इस मामले में, दोबारा टांग अड़ाई तो देख लूँगा तुम्हें। मैं समझता हूँ कि किसके कहने पर यह सब कह रही हो। ओन जी, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। आरज़ू ने समझाना चाहा तो ओन ने घूरकर इसे देखा। आखिरी बार समझा रहा हूँ आरज़ू, तुम मेरी बीवी हो, जहाँ चाहूँगा लेकर जाऊँगा, किसी का पाबंद नहीं हूँ मैं, और तुम बिना चू चुरा के मेरे साथ आओगी। खबरदार जो अब इस मामले में कुछ कहा। इसकी डांट खाने के बाद आरज़ू उदासी से मुँह फुलाकर बैठ गई। मेरी जान नाराज़ हो गई। इसने आरज़ू का हाथ थामा। आरज़ू ने हाथ छुड़वा लिया। अच्छा आओ, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, मुस्कुरा कर बोला, जबकि इसका इस तरह से हाथ झटकना इसे पसंद ना आया था। ये बात आरज़ू भी नोट कर चुकी थी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाओगी? आरज़ू ने इसका मूड देखकर कहा। चॉकलेट फ्लेवर खाऊंगी, ओन ने हुक्म सुनाया। आरज़ू जवाब में कुछ ना बोली तो वह मुस्कुरा दिया। ऐसे ही मेरी साथी सारी बातें मानना करो। वो इसे अपने साथ में घर में लाया था और ये ज़्यादा बुरा और खुला नहीं, लेकिन छोटा और खूबसूरत सा घर था और इसे साथ लिए घर का एक एक कोना दिखा रहा था। चलो अब बेडरूम दिखाता हूँ, इसने आखिर में शरारत से कहा। जी नहीं, अब घर चले, बहुत देर हो रही है। वो इसके इरादों से डर कर फ़ौरन बोली। ऐसे ही घर चलो, पहले पूरा घर तो दिखा दूँ। वो इसे अपनी बाहों में उठाए ऊपर की तरफ चल दिया। ओन जी, बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं ना, इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। आई डोंट केयर, वैसे भी तो 2 दिन में तुमने यहाँ ही आना है, हमेशा के लिए। ओन ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक और धमाका किया। लेकिन ओन जी, आरज़ू, मेरा मूड बहुत अच्छा है, ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। वो इसे बेडरूम में लेकर आया और बेड पर बिठाया। ओन जी, आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। इसने उठने की एक नाकाम सी कोशिश की। बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे इरादे समझने लगी हो, वैसे भी ठीक नहीं है। अगले ही पल वो इसकी कैद में आ चुकी थी। अब ओन जी अब बहुत बुरे हैं, वो इसकी कैद में मचलते हुए बोल रही थी। अरे अभी कहाँ, आज तो मैं तुम्हें ठीक से पता चलेगा कि मैं कितना बुरा हूँ। वो इसके लबों को अपना शिकार बनाते हुए बोला। आरज़ू जानती थी मज़ाहमत बेकार है, अब घर चलें। रात का अंधेरा गहरा हुआ तो आरज़ू पूछने लगी, ये भी तो घर है ना, इसी को बसाओ, इसी को सजाओ। वो इसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला। ओन जी, वो घर भी तो आपका है और तो आपके नाम भी है, क्या ज़रूरत है हमें वो घर छोड़ने की। फिर वही बात है आरज़ू, तुम क्यों नहीं समझ रही। नहीं रहना चाहता उस घर में और लोगों के बीच, अपना घर बनाना चाहता हूँ अलग, जिसमें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ना हो, और वो घर मैं उन सब के नाम कर दूँगा। मुझे ना उस घर से मतलब है और ना ही उन लोगों से। मैं उन लोगों से हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और वैसे भी छोड़ो इन सब बातों को, तुम्हें एक और बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए यहाँ आया था और तुमने मुझे बहकने पर मजबूर कर दिया। ओन सीरियस अंदाज में बोलता हुआ शरारती अंदाज में बोला तो घूर कर रह गई। ऐसे मत कहें, मैंने नहीं बहकाया आपको, आप तो वैसे ही बहके रहते हैं। आरज़ू मुँह बसोड़ कर बोली। क्या करूँ जाने मन, तुम में नशा ही बहुत है, इंसान बहके ना तो कहाँ जाए। वो इसके लबों को सहलाते हुए बोला। इससे पहले कि वो इस पर झुकता, आरज़ू बोली थी, आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। ओन पीछे होकर इससे बात करने लगा। आरज़ू, मैं तामिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ओन ने बात शुरू की। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना ओन जी, मैं जानती हूँ आप उनसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने उन्हें मेरे लिए छोड़ दिया। आरज़ू बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। नहीं आरज़ू, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ा है। कुछ अर्सा पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में गया था जहाँ तुम मुझसे टकराई थी और उस दिन तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ एक खाली लिफाफे में वहाँ गिर गई। इसने अपनी जेब से वो फ़ोटो निकाल कर इसके सामने की। जानती हो आरज़ू, ये तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं इस तस्वीर में मौजूद इस लड़की को पसंद करने लगा और मैंने इसे रब्ता करने की कोशिश की। इसके पीछे मिस उस्मान लिखा था। शॉपिंग मॉल पर पता करने पे ये पता चला कि किसी कॉन्टेस्ट में मिस उस्मान नाम की एक लड़की ने हिस्सा लिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम मामू का नाम इस्तेमाल करती हो अपने नाम के साथ। बस इसी गलतफहमी की बिना पर मैंने इस कॉन्टेस्ट में मौजूद इस लड़की के नंबर पर रब्ता किया, लेकिन वो तुम नहीं बल्कि तामिया थी। इसी गलतफहमी की वजह से वो तुम्हें अपना ना सका, मैं तुम्हें अपना ना सका। मैं तामिया को आरज़ू समझता रहा, लेकिन जब मैं पहली बार उससे मिलने जाने वाला था, इत्तेफाक से ही उसी दिन मैंने तुम्हें देखा। खुदा का शुक्र है कोई भी गलत फ़ैसला करने से पहले मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई और इसे सारी बात बताकर अब इसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन काफ़ी देर के बाद वो
कुछ भी ना बोली। जब ओन को अपनी शर्ट भीगती हुई महसूस हुई तो वो सर्द आह भरकर रह गया। यार, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो इसका चेहरा ऊपर किए इसके आंसू साफ करने लगा। आरज़ू, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं बेतहाशा चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत की किताब में तामिया की कोई जगह नहीं है। वो इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला। आरज़ू, जो इतने दिनों से ये समझ रही थी कि इसने अपनी बहन की खुशियाँ बर्बाद कर दी हैं, आज पुरसुकून हो गई थी। इससे पहले कि वो इसके गले लगकर मज़ीद रोने का प्लान बनाती, ओन ने घर चलने का ऑर्डर दे दिया। वो घर आया तो आरज़ू पुरसुकून नींद सो रही थी। वो इसे सुकून से सोने दे ये तो ओन ने सीखा ही नहीं था। फ़ौरन इसके करीब आया, एक ही पल में अपने ठंडे ठंडे हाथ इसकी गर्दन पर रख दिए। वो तो उछल ही पड़ी। ऐसा लगा जैसे अंदर कमरे में बर्फ़ गिरने लगी हो। एक तो सर्दी ज़रूरत से ज़्यादा थी, ऊपर से ओन ने इसे मज़ीद सर्दी का करंट दे दिया था और अब इसकी हालत पर कहकहा लगाकर हंसता हुआ इसके साथ लेट गया। ओन जी, प्लीज़ अपने ठंडे पैरों से मुझे मत छूइएगा। आरज़ू ने जैसे मिन्नत करते हुए अपने पैर दूर किए। डार्लिंग, अब मैं तुम्हें अपने ठंडे पैर भी ना लगाऊं तो मैं इस सर्दी में मर ही ना जाऊं। इतनी सर्दी पड़ रही है कि बंदा खुद फ्रीज़ हो जाता है। शुक्र है इन सर्दियों से पहले मेरी शादी होगी, वरना मेरा क्या होता। वो शरारत से कहता इसके साथ चिपक चुका था। आप बहुत ख़राब हैं ओन जी, वो इसे शिकायती नज़रों से घूर कर बोली। अरे मेरी जान, अभी कहाँ, मैं तुम्हें अभी बताने लगा हूँ कि मैं कितना ख़राब हूँ। वो इसे अपने शिकंजे में लेते हुए बोला। मुझे सुबह कॉलेज जाना है। आरज़ू ने आखिरी इल्तिजा की। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, चली जाना। एक बार वो इसके लबों को कैद करते हुए बोला और हमेशा की तरह इसके सामने आरज़ू की एक भी मज़ाहमत न चली। ओन फुल यूनिफॉर्म में तैयार हो के अभी वॉशरूम से निकला ही था। अभी तक आरज़ू नहीं जागी। ये आज इसे क्या हो गया है? वो इसके करीब आकर इसका माथा छूकर देखा कहीं इसे बुखार तो नहीं। रात को भी जल्दी सोने दिया था, फिर भी अभी तक क्यों नहीं जागी? आरज़ू, इसने उठाते हुए पुकारा। आरज़ू, उठ जाओ, क्या हो गया है? आज उठना नहीं है क्या? वो इसे उठाते हुए बोला। आरज़ू ने ज़रा सी अपनी आंखें खोली। क्या हुआ मेरी जान? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें चाहते हुए कॉलेज जाऊंगा। वो बहुत मोहब्बत से बोला जब वो सुस्ती से उठकर इसके सीने से लग गई। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ओन जी, मैं आज छुट्टी कर लूं। और बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोली। क्यों दिल नहीं कर रहा मेरी जान का? वो मोहब्बत से इसके बाल पीछे करते हुए बोला। ओन जी, मुझे लगता है मेरी तबीयत ख़राब है। वो अपने माथे पर उल्टा हाथ रख कर बताने लगी। बिल्कुल भी ख़राब नहीं है तुम्हारी तबीयत, ये बस कॉलेज ना जाने का बहाना है। ओन ने इसे जाँचती हुई नज़रों से देखा तो वो नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। ओन जी, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब है। आरज़ू ने अपना यकीन दिलाना चाहा। ये बात है तो चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। ओन ने फ़ौरन ऑफ़र की। नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। आरज़ू ने कहा। मतलब जब कॉलेज का टाइम गुजर जाएगा तो ठीक हो जाएगा? ओन ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा। ओन जी, सच्ची में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आरज़ू मुँह बसूर कर बोली। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अब खुश? वो मोहब्बत से इसका माथा चूमकर कंबल ठीक करने लगा। तुम आराम करो, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, जबकि आरज़ू को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। अपना काम निपटा के वो आरज़ू को पैकिंग करने का कहने के लिए फ़ोन करने लगा। जब आरज़ू का फ़ोन ज़ुबैदा ने उठाया। आरज़ू कहाँ है? इसे फ़ोन दीजिए। इसका मूड ख़राब होने लगा। बेटा, मैं और आरज़ू अस्पताल आए हुए हैं, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं इसे यहाँ ले आई। ज़ुबैदा ने बताया तो उन परेशान हो गया। क्या हुआ है आरज़ू को, वो ठीक तो है? उन्होंने परेशानी से पूछा। हाँ बेटा, वो कह रही थी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। अभी तो वो इसे बता ही रही थी जब डॉक्टर बाहर आ रही। मुबारक हो, अब दादी बनने वाली हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खबर दी। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? ओन तो बाप बनने वाला है। इसने अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी, जबकि ओन को समझ नहीं आ रहा था वो इन्हें क्या जवाब दे। मैं अभी आता हूँ, वो बस इतना कह के फ़ोन बंद करने लगा और ज़ुबैदा बोली। बेटा तो घर ही आ जा, मैं आरज़ू को लेकर घर जा रही हूँ। जी ठीक है, आप लोग घर पहुँचे, मैं अभी आ रहा हूँ। ओन ने खुशी से फ़ोन बंद किया। इसने आरज़ू को क्या कहने के लिए फ़ोन किया था वो तो भूल ही गया। घर में ईद का समा था, हर कोई बहुत खुश था, सभी इसे मुबारकबाद दी थी, जबकि ओन तो आते ही बिना किसी की परवाह किए इसे अपने सीने से लगाया था। सबके सामने ओन की इस हरकत पर वो नज़र तक न उठा पाई, लेकिन इसे तो किसी की परवाह ही नहीं थी। हमेशा की तरह मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी मर्ज़ी, और इसे सब के साथ छोड़कर ऊपर अपने कमरे में जा चुका था। आज आरज़ू ने यही फ़ैसला किया था कि आज वो उनको मना करेगी कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। क्या पता इस खुशी की वजह से ओन इसकी बात मान ले। यही सोचती हुई वो ऊपर कमरे में आई, लेकिन कमरे में कदम रखते इसे झटका लगा। जहाँ
और इसका रखना बहुत तैयार हो चुका था। देखो आरज़ू, मैंने तुम्हारा रकम सारा सामान पैक कर लिया है, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं। हम अपनी ये खुशी अपने नए घर में जाकर मनाएंगे। वो इसका माथा चूमता इसका बैग उठाकर बाहर ले गया। जाने से पहले बस इतना कह के गया कि मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑन प्लीज़ घर छोड़ के मत जाओ, हम कैसे रहेंगे, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूँगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ये मत करें। वो सामने इससे पहले कि वो ऑन के सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऑन बोल उठा, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं ये घर छोड़ने वाला हूँ, और अब के लिए खुदा के लिए ये कुछ मत करें, मुझे सुकून से जाने दें यहाँ से। नीचे से ऑन की आवाज़ें ऊपर तक आ रही थी। आरज़ू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नीचे जाने लगी, जबकि ऑन दरवाजे से बाहर निकल चुका था। आरज़ू बेटा इसे समझाओ, प्लीज़ बेटा तुम इसे समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगा। मत जाओ मुझे छोड़ के, कैसे रहूँगी मैं तुम लोगों के बगैर, ज़ुबैदा रोते हुए कह रही थी, जबकि घर के सब अफराद यहाँ पर इनके साथ थे। पप्पा वो मेरी बात नहीं मानते, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की है लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े हैं। आई एम सॉरी पप्पा, मैं कुछ नहीं कर सकी, कह के आरज़ू रोते हुए इसके गले लगी। जब ऑन ने ज़ोर से इसे पुकारा, जल्दी आओ आरज़ू, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आरज़ू खामोशी से बाहर निकल गई, जबकि ऑन की तरफ इसने नज़र उठाकर न देखा। वो लोग जब से घर से आए थे आरज़ू एक लफ्ज़ भी ना बोली थी। ऑन इसकी खामोशी को नोट कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो इसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता था। वो जानता था वो क्यों उदास है। वो ख़ुद भी घर छोड़ने की वजह से उदास था, जहाँ इसका बचपन गुजरा, जहाँ इसके अपने सगे थे, इसके माँ बाप, भाई, लेकिन वो चाह कर भी इनके साथ ये रिश्ता कायम नहीं कर पाया। वो करना चाहता था, वो भी अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो भी चाहता था कि इसके माँ बाप इससे भी प्यार करें, लेकिन इन लोगों ने हमेशा ओन को खुद से दूर रखा। वो कभी इन लोगों की तवज्जो का मरकज़ न बना, घर में कोई इसे अहमियत न देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी अपने आप में दिलचस्पी ना देकर ओन ने बात करना छोड़ दिया। ओन ने सबको अहमियत देना छोड़ दिया, इनसे बात करना छोड़ दिया। वो हॉस्टल में एक दिन के लिए आता और सारा दिन अपने कमरे में रहता। जब ओन को इन लोगों की ज़रूरत थी तब वो इसके साथ नहीं थे। अब ओन को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आरज़ू की ज़रूरत थी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह। वो इन दोनों को वक्त देना चाहता था, इन दोनों के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। वो आज बहुत खुश था। आरज़ू ने ऐसे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी और इसका इस तरह से परेशान होना इसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल ओन ने इसे तंग ना किया। इसे छोड़कर इसके लिए खाना लाने गया। वो सब कुछ इसकी पसंद का लाया था कि वो खुश हो जाए, लेकिन वो जानता था इस वक्त आरज़ू खुश नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसे खुश रखने की अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहा था। आरज़ू मेरी जान, कब तक इस तरह बैठे रहने का इरादा है, आओ खा लो। ओन ने सारा खाना टेबल पर रखा और इसे बुलाने कमरे में गया। मुझे भूख नहीं है ओन जी। आरज़ू बस इतना बोलकर खामोश होगी। बस कर आरज़ू, बहुत हो गया, कब तक ये रोना धोना करना है। हाँ तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, चलो नीचे चल के आराम से खाना खाओ। इस बार वो सख्ती से बोला। ओन जी मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, तो क्या आप मुझे ज़बरदस्ती खिलाएंगे। इस पर आरज़ू भी ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। अच्छा ठीक है बाबा, खाना नहीं खाना, फ्रूट्स खा लो ठीक है। ओन की ऊंची आवाज़ को इग्नोर करता मोहब्बत से बोला। वो ये कहकर उठा और बाहर चला गया। जब वापस आया तो इसके हाथ में कुछ फ्रूट्स थे। इस बार वो इतने प्यार से इसकी तरफ देख रहा था कि आरज़ू इनकार न कर सकी। वो इसे अपने हाथ से सेब काट कर देने लगा तो आरज़ू ने ले लिए। अब ओन जी और नहीं, इसने इनकार किया, लेकिन मतलब और नहीं, अभी तो तुमने पूरा एक सेब भी नहीं खाया। चलो तुम तो चिड़िया जितना खाती हो, लेकिन मेरी बेटी या बेटे का कुछ ख्याल करो। उन्होंने इसके मुंह सेब का टुकड़ा रखते हुए कहा। वो भी खा चुके हैं। आरज़ू शर्माते हुए बोली। अच्छा बाबा ठीक है, ये एक सेब तो पूरा खा लो, फिर नहीं कहूँगा वादा। वो एक बार फिर से इसे सेब खिलाने लगा। आरज़ू ना करती रही, लेकिन ओन ने इसकी एक बात ना मानी। इन दोनों को यहाँ आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जब सब कुछ ठीक हो चुका था वो अपना ख्याल रखने लगी थी और ओन ने 2 मेट्स का इंतज़ाम कर दिया था जो हर वक्त इसके साथ रहती। लेकिन फिर भी आरज़ू बहुत परेशान रहने लगी थी। हर वक्त इसका ध्यान घर और घर वालों पर ही रहता था। कितनी रो रही थी इसकी पप्पो जब ओन घर छोड़ के आया था। ओन को इनका एहसास क्यों नहीं है? बस एक गलत फहमी की बिना पर वो अपने रिश्ते ख़त्म कर रहा है, सबको खुद से दूर कर रहा है। मुझे इन्हें बताना चाहिए कि वो जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। पप्पो इन्हें मारना नहीं चाहती थी और पप्पा का भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन ये भी सच था कि जो कुछ भी हुआ वो इनकी मजबूरी थी। मुझे ओन जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन ओन जी तो मुझे घर वालों के बारे में बात तक नहीं करने देते। कैसे समझाऊँ मैं इन्हें जो कुछ भी हुआ इसकी
پپو کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو خود اس حد تک مجبور تھی کہ کچھ نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی۔ اور اون جی یہ بات کب سمجھیں گے، کیسے سمجھاؤں انہیں؟ وہ روز ہی تقریباً پپو سے فون پر بات کرتی اور روز ہی روتی، اس سے کہتی کہ کچھ کرو آرزو، وہ گھر واپس آ جائے، میں اسے دیکھے بنا نہیں رہ سکتی۔ اور پپو کا رونا آرزو سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ تقریباً روز ہی ان سے اپنے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن آج اس نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کو گھر آیا تو آرزو میڈم میڈ کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچن میں آنے سے منع کیا ہے، وہ سختی سے بولا۔ جی سر، میں نے منع کیا تھا لیکن میڈم نہیں مان رہی۔ میڈم نے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ جب اون آرزو کا ہاتھ تھام کر کچن سے باہر لے آیا، اون جی میں اکیلے کمرے میں بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کیوں نہ اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دوں، بیچاری صبح سے کام کر رہی ہیں۔ آرزو اس کا موڈ دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ آرزو وہ سب کچھ کرنے کے پیسے لیتی ہے، اسے اس محنت کا پورا معاوضہ ملتا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو اپنے کمرے میں چل کر آرام کرو، وہ اسے سختی سے کہتے ہوئے بولا۔ دن رات آرام ہی تو کرتی ہوں، کیا مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا؟ اس طرح سے آرزو منہ بسوڑ کر بولی تو وہ مسکرایا۔ اچھا جی، تم میری بیوی بور ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں اپنی بیوی کی بوریت کو دور کرنے کے لیے ایک لانگ ڈرائیو پہ لے چلوں؟ اون نے مسکراتے ہوئے آفر کی تو وہ بھی مسکرائی۔ جس دن سے آرزو کی پریگنینسی کی خبر ملی تھی، اون اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ کبھی اس کی کسی بات کا برا نہ مانتا۔ آرزو نے بھی یہ بات بہت نوٹ کی، اسے گھر والوں کی بات کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا ہائپر ہوتا پھر نارمل ہو جاتا۔ اون نے اسے ساتھ گھمانے کے لیے لایا کرو، ان دونوں کا سانیہ پرسکون تھا۔ آرزو ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اون ایک بہترین ہمسفر تھا۔ تمہیں ایک بریکنگ نیوز سناؤں پلیز؟ تم سن کے رونے مت بیٹھ جانا کیونکہ مجھے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی ہے، اس نے سسپینس کریٹ کرتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی خبر ہے جو سن کے آپ کو اتنی خوشی مل رہی ہے اور میں رونے بیٹھ جاؤں گی؟ آرزو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تمہارا وہ بہن اور میری سابقہ معشوقہ کل رات گھر سے بھاگتے ہوئے پکڑی گئی ہے اور ماموں نے کل شام اس کا نکاح اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ رکھا ہے۔ اون نے مزے لیتے ہوئے خبر سنائی۔ کیا آپ تامیہ باجی کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ آرزو کو یقین ہے، ہاں بالکل، میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ موت ٹھیک کرو اپنا، اگر تم ایک آنسو بھی اس عورت کے لیے بہایا تو میں پورے طریقے سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اون جی یہ تو غلط ہوا، باجی کے ساتھ نہ جانے کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے ان کی؟ آرزو نے پریشانی سے کہا۔ کیا غلط ہوا بیگم؟ بالکل ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ۔ کیا جو کر رہی تھی وہ صحیح تھا؟ وہ ماموں کی عزت کو مٹی میں ملا کر کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی، وہ تو شکر ہے کہ بھاگنے سے پہلے ہی پکڑی گئی اور ماموں کی عزت بچ گئی، اور اب وہ عزت سے اسے کسی کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ اون سیریس انداز میں بولا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سب کچھ؟ آرزو نے پوچھا۔ آج فون آیا تھا ماموں کا، انہوں نے کل شادی پہ انوائٹ کیا ہے، اور پھر پریشانی سے اپنا دکھ بتانے لگے۔ بہت برا لگا مجھے، وہ تو شکر ہے کہ کچھ بھی برا ہونے سے بچ گیا، ورنہ ماموں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ اون تشکر انداز میں بولا تو آرزو بے ساختہ مسکرائی۔ آپ کو اتنے دور کے رشتوں کی فکر ہے، اور آپ کی سگی ماں آرزو کچھ کہہ رہی تھی کہ اون کی گوری نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ آرزو ہر بات کو اپنے انداز میں مت لیا کرو، مجھے ان لوگوں کی فکر ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے اپنے، ان کو تکلیف سے مجھے تکلیف ہوگی اس لیے ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ اون جتلاتے ہوئے بولا۔ پپو بھی تو میری اپنی ہیں، ان کی تکلیف سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے اون جی۔ آرزو بولے بھی نہ رہ سکی، جبکہ اس کے جواب میں اون جی کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ آرزو شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اون اس کے قریب آ کر رکا تو اس کی تیاری کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اون نے بے اختیار اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے یار، آج کہیں مت جاؤ، میرے پاس رہو نا، وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ آرزو شرماتے ہوئے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اون جی جاننا بہت ضروری ہے، نہ سمجھا کریں، تامیہ باجی کی شادی ہے۔ آرزو نے اس سے دوری قائم کرنے کی کوشش کی، جب اون نے اگلے ہی سیکنڈ اسے تھام کر اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ آج کل بہت بہانے بنانے لگی ہو، کچھ زیادہ ہی دور ہو رہی ہو۔ سنو، آج رات میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اون نے اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ امی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، امی مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ابو کو منع کر دیں، یہ شادی نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے کتنا بڑا ہے، وہ تو 50 سال کا آدمی ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تامیہ روتے ہوئے ماں سے
गिला कर रही थी, जबकि वो भी इसके साथ रोते हुए इसे दिलासा दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती तामिया, मैंने तेरे बाप को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इसने कह दिया है कि अगर मैंने इस मामले में कुछ भी कहा तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुझे ये शादी करनी होगी। अम्मी ने बेबसी से समझाया। अम्मी प्लीज़ अब्बू से बात करें, खुदा के लिए वो क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे आसिम के साथ भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने मुझसे शादी का वादा किया था। अम्मी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ अब्बू से बात करें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। बाहर घर मेहमानों से भरा हुआ था। अचानक तामिया की शादी की कोई वजह नहीं जानता था, सिवाय उनके और इसके मामू ने खुद ही बताया था।